Hello students. So now in this video we'll gonna see again very important topic which is known as quantifier. So let's begin with the concept. So definition, when you will see the definition in textbook, in any other solution, the definition is different in every book. So here I took one simplest definition which you can understand easily. So let's see the definition of quantifier. The phrase there exists at least one sum and for every all which are contained in the logical statement are called quantifier. In simple language, अगर स्टेटमेंट में ये सब वर्ड आता है एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन, सम, एवरी, ऑल, दैट मीन्स दैट फ्रेज, ये जो आता है ना फ्रेज, अगर वो स्टेटमेंट में आता है इट मीन्स इट इज़ कॉल्ड एज क्वांटिफायर. तो याद रखने का एग्जिस्ट, एटलीस्ट वन, सम, एवरी, ऑल विच आर कंटेन इन द लॉजिकल स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज क्वांटिफायर. So now in the quantifier we have two types of quantifier. One is universal, one is existential. Okay, so we have two quantifier. One is universal and the second one is existential, or in simple we can use the word exist also. Okay, now we'll see the definition for universal. The quantifier for every, all is called universal quantifier. मतलब जो स्टेटमेंट में every, all करके ऐसा वर्ड आएगा that is known as what? Universal quantifier, and it is denoted by the symbol. You can say that it look like A. That means we can say ulta A. You can use the word. Yes or no? Exist में we'll see the exist. The quantifier there exists, there is at least one, it is possible for some. अगर ये सब वर्ड यूज होता है in a statement is called as existential quantifier, and it is denoted by this symbol. Can I say this look like ulta E? Yes or no? Got the point? Okay, so there are two types of quantifier. One is universal and second one is what? Existential. Universal में basically you will see this two word, that is every and all. Exist में you will see this word exist, there is at least, it is possible for some. ज़्यादातर you will see this word some and at least one. The symbol which we use for universal is ulta A, and symbol which we use for exist is, we can say, ulta E. Now there is one more statement which is known as quantified statement. Now what is the definition? We'll see. An open sentence. Actually quantifier भी क्या होता है? ये जो quantifier है ना, quantifier, it is one form of, we can say, a open statement only, open sentence only. Yes sir. So quantified statement, an open sentence with qualifier becomes a statement, is called quantified statement. And what do you mean by this? We'll see with one example. Suppose if I say this symbol stands for what? All. X belongs to, this symbol E is known as what? Belongs to inside language. Capital N stand for natural number and capital W stand for whole number. ये तो पता ही है. Such that here we have one condition, x square is greater than 0. ये suppose दिया है.
So here can I say, here we have the condition x square greater than 0, बट ये वाला इसमें पूरे सेंटेंस में वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू क्या है, लेकिन एक्स दिया है, मेंशन किया है, क्या है यार एक्स जो है एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है. व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर मीन्स व्हाट? इट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, स्टॉप कर दिया नहीं है, स्टॉप दिया नहीं है, मतलब कहाँ तक जाएगा, बस इतना बोले. द वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू रिप्लेस एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट? इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर का जितना भी नंबर्स है वो एक्स का वैल्यू बन गया, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू natural number. So when you will replace the value of x by 1, so 1 square is 1 which is greater than 0, 2 square is 4 which is greater than 0, 3 square is 9 which is greater than 0, 4 square, when you will replace the value of x, okay, the qualifier becomes a statement, yes or no? But actually ये जो दिया है it is an open sentence. Why? Because the value of x इट इज़ नॉट परफेक्ट, मतलब कौन सा वैल्यू पुट करना है, 1 नहीं करना है, 2 करना है, 3 करना है, 4 करना है, इन्फाइनाइट नंबर्स आर देयर. सो हियर x इज ओपन फॉर मेनी वैल्यूज, वी कैन रिप्लेस दिस x बाय 1 2 3 4 5. मतलब ये जो एक्चुअली ये एग्जाम्पल दिया, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट वेर यू विल सी दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 0, ओके, जहाँ पर वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ x, ओके, x का पर्टिकुलर वैल्यू मेंशन नहीं किया है, वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x बाय एनी नंबर. सो हियर x इज ओपन फॉर मेनी नंबर्स. So that's why an open sentence which qualifier becomes a statement is called quantified statement. Okay, got the point? लेकिन ये एक्सरसाइज में ज़्यादातर सम इट इज़ बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एंड एक्सिस्ट ओनली. सो नाउ लेट्स बिगिन विथ द सम्स. ओके, some example we'll see and 2-3 examples, and then the remaining sums of the exercise you have to try by yourself. Okay, so let's begin with the sums. Okay, so in the question number 1 we have the value of a, that is a equal to curly bracket open 1 2 3 4 6 12 curly bracket close. That means a is a set of these elements 1 2 3 4 6 and 12. Determine truth value. Whenever the word comes truth value, समझ जाना ये जो सेंटेंस दिया है या स्टेटमेंट दिया है, either it will be true or it will be false. Truth value means true or false. आंसर उसके टर्म में आना चाहिए, true or false of each of the following. So here we have the first question. Now we'll see the presentation also, कैसा प्रेजेंट करना है सबको in the board exam. Okay, so now, so what do you mean by this symbol exist? X, what do you mean by this? Belongs to. This is known as what? Belongs to. Such that here we have one condition, that is x minus 4 equals to 0. Just simply focus on this symbol. This symbol stands for what? Exist, or we can use the word sum. So here I will explain this example in simplest language. Now here x belongs to a, मतलब जो x का वैल्यू है वो किधर है? a के अंदर छुपा है. where a is a set of this number, तो x belongs to a मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो गया अभी? 1 2 3 4 6 and 12. तो सिंपली क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है. फर्स्ट विल पुट 1, then we'll put 2, then 3 4 6 and then 12. okay, what do you mean by this symbol? ये सिंबल का मतलब क्या होता है? सम या वी कैन यूज और एटलीस्ट 1, मतलब इसमें से अगर एक वैल्यू भी सेटिस्फाई होता है दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज ट्रू. मतलब x की जगह पे सपोज मैंने 1 2 3 4 6 12 किया एंड वी गेट द आंसर 8. समझ जाना इसमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई होता है द स्टेटमेंट इज ट्रू. अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होता है द स्टेटमेंट इज फॉल्स. अंडरस्टूड? गॉट द पॉइंट? नाउ एटलीस्ट 1 का मतलब क्या होता है? कम से कम एक या एक से ज़्यादा. नाउ व्हेन यू विल पुट 1, सो 1 minus 4
इज -3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 8, मतलब 1 पुट करने से 8 नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल पुट 2 पुट करने से भी 8 नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल पुट 3 पुट करने से भी 8 नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल पुट 4 करने से भी नहीं आ रहा है. व्हेन यू विल रिप्लेस द x बाय 6 स्टिल इट इज़ नॉट इक्वल टू 0. व्हेन यू विल रिप्लेस x बाई 12 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 8. मतलब देखो 1 2 3 4 6 में से एक वैल्यू सेटिस्फाई है. एंड व्हाट डू मीन बाय दिस सिंबल, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, सम, कुछ वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए और एल्स एटलीस्ट 1, कम से कम एक या एक से ज़्यादा वैल्यू होएगा तो भी चलेगा. एक तो हो रहा है ना, मतलब ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या, इट इज़ ट्रू. सो वाइल राइटिंग सेंटेंस को फ्रेम कैसे करना है, सिंस जैसे मैं x का वैल्यू 12 पुट करता हूँ विच इज़ बिलोंग्स टू a, it satisfy the equation. What is the equation? It is x minus 4 equals to 0. एक वैल्यू भी satisfy हो मतलब it is true. So therefore here you will write what? The given statement is true. If it is true, so its truth value will be what? Its truth value is, we'll write capital T. Why capital T? True के लिए we use capital T. So सर 3 स्टेप में फिनिश करना है. फर्स्ट यू विल राइट जो वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू and the truth value is true. Got the point? अगर एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होता था तो स्टेटमेंट क्या हो जाता था, फॉल्स, और ट्रूथ वैल्यू क्या बन जाता था, फॉल्स. विल टेक वन मोर एग्जांपल, तभी समझ में आ जाएगा अच्छे से. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सिंबल, ऑल ना, मतलब एंड वी हैव द ये कंडीशन ऑल्सो x प्लस 11 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12. ऑल का मतलब है नाउ x बिलोंग्स टू, मतलब x का वैल्यू क्या क्या बना, 1 2 3 4 6 12, मतलब सब वैल्यूज इधर x की जगह पे पुट करने के बाद दिस लेफ्ट हैंड साइड, ओके, दिस साइड इट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 12. सब वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर इसमें से एक भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होता है सो स्ट्रेट अवे विल से दैट इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट. चलो विल सी नाउ वन बाय वन. 1 प्लस 11 12 विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12, इक्वल भी बोला है. 2 प्लस 11 13, यस. 3, यस. 4 स्टिल इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12. 6 17 स्टिल इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12. 12 प्लस 11 बराबर, स्टिल अगेन इट इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12. सो मतलब सब वैल्यू पुट करने के बाद भी ये जो कंडीशन दिया है विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 12, मतलब सब वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं. येस और नो, सिंस वी कैन से दैट ओके x इक्वल्स टू 1 2 3 4 6 12, जितने वैल्यू से जो बिलोंग्स टू a है, येस और नो, satisfy the given condition, that is x plus 11 greater than equals to 12. So therefore we can say that the given statement is true, hence we can say its truth value is t. Got the point? Yes or no? चलो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल, फिर और अच्छे समझ में आ जाएगा. ओके, थर्ड वन इज व्हाट, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, एग्जिस्ट मतलब सम वैल्यू, यस और नो, बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर. कंडीशन दिया है x का जो वैल्यू बिलोंग्स टू a, इसमें से जो वैल्यू क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए. व्हाट डू मीन बाय दिस सिंबल, सम और एटलीस्ट 1. तो इसमें से एटलीस्ट 1 या एक या एक से ज़्यादा वैल्यू या सम कुछ वैल्यू क्या होना चाहिए,
इवन नंबर. सो विल सी कौन सा इवन है. 2, 4, 6 एंड 12 इट इज़ अ इवन नंबर, बट 1 एंड 3 इट इज़ अ ऑड नंबर. लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या बोला था, सिंबल क्या यूज़ किया था वो लोग ने, सम. मतलब इसमें से कुछ भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई होता है फॉर दिस कंडीशन, वेर वी कैन से दैट x इक्वल्स टू 2, 4, 6, 12 which belongs to A are even number. So therefore the given statement is true. So hence the truth value is T. तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल देखा इट वॉज फॉर ट्रू स्टेटमेंट ओनली. यस और नो. सपोज ये सिंबल की जगह पे अगर ऑल होता था, ऑल ये वाला सिंबल होता था, इसके जगह पे अगर ये होता था ऑल, यस और नो, x बिलोंग्स टू A सच दैट x इज़ एन इवन नंबर. ऑल का मतलब जितना भी वैल्यूज है सब क्या होना चाहिए था, इवन नंबर. लेकिन यहाँ पर 1 एंड 3 विच बिलोंग्स टू A डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. इसका मतलब क्या है, सब वैल्यू ना, सब वैल्यू नहीं हो रहे हैं. तो अगर इसकी जगह पे अगर ये होता था ये, तो ये स्टेटमेंट क्या बन जाता था, फॉल्स. गॉट द पॉइंट, यस और नो. चलो नाउ we'll move on to the second question, that is question number 2. use the quantifier to convert open sentence into true statement. ये अभी ओपन सेंटेंस है. वाई इट इज़ ओपन, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 वेयर एक्स का वैल्यू अपने को पता नहीं है, इट इज़ 1, 2, 3, 4. लेकिन एक कंडीशन दी है, स्टेटमेंट गिवन ऑन द सेट W. W स्टैंड फॉर होल नंबर. समटाइम दे विल से दैट सेट N. N का मतलब इट इज़ नेचुरल नंबर. तो कभी कभी W दिया रहेगा, कभी कभी N दिया रहेगा in the question. Okay, now so use the quantifier to convert upon open sentence into true statement. So now x square equal to 16 अभी यहाँ पर कन्वर्ट करना है. ये जो अपनों को इक्वेशन दिया है इसको क्वांटिफायर में कन्वर्ट करना है. वी हैव ओनली टू क्वांटिफायर, वन इज़ यूनिवर्सल या तो एग्जिस्ट. तो यहाँ पर एग्जिस्ट वाला सिंबल आएगा या तो यूनिवर्सल. इट इज़ वेरी सिंपल, दो गेसिंग इट इज़ वेरी सिंपल. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट करने से यू विल गेट 16, 1, 2, 3, 4. ओके, एक्चुअली द आंसर विल बी प्लस एंड माइनस 4 बिकॉज प्लस स्क्वायर इज 4 स्क्वायर इज 16 एंड माइनस 4 स्क्वायर अगेन इट इज 16. बट यहाँ पर क्या बोला है, गिवन ऑन सेट W. W मीन्स होल नंबर. होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3. सो हियर वी कैन से दैट यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा. अगर सपोज W की जगह पे N यूज़ किया रहता तो भी और नेगेटिव नहीं आता. सो हियर वी कैन से दैट x इक्वल टू 4 विच बिलोंग्स टू, अगर W बोला तो हियर यू विल राइट W, अगर N बोला तो यू विल राइट N. सपोज यहाँ पर N दिया है ये वाला क्वेश्चन. सो 4 इक्वल्स टू N where we can say satisfy x square equal to 16. तो जैसे मैंने नोटिस किया x का 2 वैल्यू आ रहा था, उसके बाद क्या पता चला माइनस तो नहीं आता बिकॉज जो सेट है इट वॉज होल नंबर या नेचुरल नंबर, तो नेगेटिव नंबर्स नहीं आएगा. सो मतलब x इक्वल टू 4 मतलब एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं, एक ही वैल्यू सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो दैट मीन्स अगर एक ही वैल्यू सम वैल्यू एटलीस्ट 1, तो मतलब सिंबल क्या आना चाहिए, दिस वन. यस और नो. x बिलोंग्स टू, वेर x बिलोंग्स टू दैट इज n, such that x square equals to 16 is a true statement. तो जो क्वेश्चन बोला था, क्या बोला था, use the quantifier to convert open sentence into true statement. मैंने true statement में भी कन्वर्ट किया और मैंने quantifier भी अटैच किया. यस और नो. चलो ये अभी समझ में आया कैसा लिखना है अपनों को. गॉट द पॉइंट. सो मैं यहाँ पर क्वांटिफायर अटैच करके देता हूँ, कैसा आएगा देखो. फॉर सेकेंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0. कैन आई से इट इज़ अ प्रॉपर quadratic equation because the power of the variable is 2. So when you will solve this part, so 5 2s are 10, so minus 5 minus 2, क्या नहीं से x का वैल्यू क्या कहेगा 5 और x इक्वल्स टू 2, दो ही वैल्यू मिल रहा है. सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 and 5 विच बिलोंग्स टू n क्यों यूज़ किया बिकॉज यहाँ पर सेट क्या बोला, n बोला है ना, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो मतलब दो ही वैल्यू आ रहे हैं ना.
सब वैल्यू नहीं आ रहा, दो वैल्यू मतलब सिंपल। अगेन यहाँ पर क्या आएगा, ये वाला सिंपल है, एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 इज ट्रू स्टेटमेंट। यस और नो, गॉट द पॉइंट। समझा कैसा अटैच करना है, और देख के समझ में आता है। देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, 4 स्क्वायर इक्वल टू, एक ही वैल्यू आ रहा था। इफ इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मालूम है 2 ही आने वाला वैल्यू, उससे ज़्यादा आएगा 2 वैल्यू मतलब इट इज सम ओनली ना, सम। तो इसके लिए एग्जिस्ट। नाउ विल सी एक्स स्क्वायर इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए या तो 0 से इक्वल। सपोज यहाँ पर n दिया है तो 1 2 3, सपोज यहाँ पर w दिया है तो व्हाट यू विल टेक, होल नंबर। ओके, सपोज वो होल नंबर है तो ये वाला कंडीशन। समटाइम्स ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह पे दे विल यूज़ द वर्ड एक्स, दे विल से दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो दोनों में से कौन से भी एक केस आ सकते हैं। सो नेचुरल नंबर जब दिया रहेगा, ऐसा कंडीशन दिया रहेगा येस और नो, व्हेन इट विल बी होल नंबर तो ये वाला दिया रहेगा, उससे फ़र्क नहीं गिरता। ओके, सो सपोज व्हेन इट इज़ अ होल नंबर सो विल स्टार्ट विथ 0, 0 स्क्वायर इज 0, इक्वल आना चाहिए। व्हेन यू विल पुट 1 अगेन इट इज़ ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यू पुट करो फॉर होल नंबर। अभी ये सपोज जब सेट n दिया है तो क्वेश्चन ऐसा बना के दिया रहेगा, ऐसा नहीं दिया रहेगा। तो x की जगह पे व्हेन यू विल पुट 1 2 3 4 सब वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा, कुछ भी वैल्यू पुट करो। सो ये कैन ऐसे क्लियरली इट इज़ एन ओपन सेंटेंस वेर x का वैल्यू इट इज़ ओपन फॉर ऑल द वैल्यूज़। व्हेन इट इज़ ओपन फॉर ऑल द वैल्यूज़ तो सिंबल क्या आना चाहिए, ऑल। x बिलोंग्स टू, फॉर दिस इट विल बी w, फॉर दिस इट विल बी natural number. Yes or no? Got the point? So suppose it is a whole number तो कैसा आएगा, ऐसे नहीं आया, x belongs to w, okay, where we can say x square greater than equal to 0 is a true statement. So we can say that that's the end of the quantifier. So we'll take one revision. Quantifier mein we can say that this phrase will come in a logical statement. There are two types of quantifier, one is universal, one is existential. The symbol which we use for universal that we can say ulta a, exist के लिए उल्टा e. Universal में every all word will come, exist में some at least one will come. Quantified statement का मैंने explain किया है, actually it is an open sentence where the value of x will be open for all. So exercise में ये type का questions होगा in which ऐसे sets दिया रहेगा, determine the truth value, और कुछ question ऐसा होगा we have to convert the given equation into a quantifier. I guess आप लोगों को समझ में आ गया. If any doubt is there, okay, you can ask. So the next part we'll see one more important topic. Till then, goodbye. Okay, so now let's begin with a very important concept, students, which is based on converse, inverse and contrapositive. It is very important concept for science as well as for commerce. ये sure short sum आता ही है for 3 marks. Okay, from last so many years I am seeing that ये 3 marks के लिए आता ही है, which is based on converse, inverse and contrapositive. So what do you mean by converse, inverse and contrapositive? Now we'll see. If P implies Q is a conditional statement, then its converse will be what? Q implies P. कन्वर्स का मतलब पता है ना, उल्टा होता है ना, कुछ भी स्टेटमेंट दिया है उसका उल्टा, तो पी आर क्यू है तो क्यू पी हो जाएगा. इनवर्स विल बी व्हाट? नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू. कॉन्ट्रा पॉजिटिव विल बी व्हाट? नेगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ पी. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है टू मेक द सम ईजी.
Now listen here, converse, inverse and contrapositive, it is only applicable for if then condition. It is only applicable for if then condition. It is not for and, but, yet, or. Okay, if and only if, ये सब के लिए नहीं होता. It is only for if then condition. So when you will see the example, if then, can you see? If then आ रहे हैं, if then, here it is not if, it is there. Okay, now one more thing, if के बाद वाला जो भी होता है हमेशा you have to consider that sentence as P. then के बाद वाला जो भी होता है as Q. so this part will be P and this part will be Q. so here this part will be P and this part will be Q. सो यार इफ़ यहाँ पर आ रहा है, इफ़ के बाद वाला हमेशा याद रखना, मैंने बोला इफ़ के बाद वाला हमेशा इट इज़ पी एंड दिस रिमेनिंग पार्ट विल बी व्हाट, क्यू. सो यहाँ तक समझ में आया. सो इससे पता चलता है दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली इट इज़ ओनली फॉर इफ़ देन कंडीशन. इफ़ देन के अलावा इफ़ एंड ओनली इफ़ के लिए नहीं होता है, डबल इम्प्लाइज के लिए नहीं होता है. अंडरस्टूड? या नेगेशन आएगा बट एंड और ये सब अंडरस्टूड, एंड और ये सब के लिए नहीं है, इवन डबल इम्प्लाइज ऑल्सो. सो मतलब जब क्वेश्चन रीड करोगे द गिवन क्वेश्चन इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू. चलो विल ट्राई वन एग्जाम्पल, फिर समझ में आ जाएगा. तो सबसे फर्स्ट विल टेक लेट बताना पड़ेगा ना कौन सा सेक्शन को पी लिया है, कौन सा सेक्शन को क्यू लिया है. नाउ एक चीज़ हमेशा याद रखना, वेदर इट इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड एक्सरसाइज, थर्ड, जो समय आप लोग लेट ले रहे हो, एजम्पशन कर रहे हो, लेट सी टू इट दैट व्हेन यू विल टेक पी एंड क्यू, ओके, उसमें कनेक्शंस नहीं आना चाहिए. कनेक्शन क्या क्या, एंड और, यस और नो, इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, नॉट. लेट में वो कनेक्शन नहीं आना चाहिए. विदाउट कनेक्शन दैट सेंटेंस यू हैव टू टेक. सो ये वाला सेंटेंस में कहने से इफ एंड देन इज अ कनेक्शन, उसको अगर निकाल दिया सो वी लेफ्ट विथ वोल्टेज इंक्रीज. सो पी विल बी व्हाट, वोल्टेज इंक्रीजेस, yes or no, and Q will be what, current decreases, yes or no. Got the point? Once again, whether it is first, second, third, fourth, any exercise, when you will consider let, when you will take let, कौन से भी sentence में assumption करते हैं let, see to it that when you will take the value of P and Q, when you will take the statement for P and Q, okay, don't consider the connections. connection नहीं आना चाहिए let में, हमेशा याद रखो. now so therefore after taking let we can clearly see that this is P, this is Q. if then का मतलब क्या होता है, P implies Q. so here you will write the given statement is in the form of what, P implies Q, yes or no. if it is the form of P implies Q, so we'll start with the first one. what is the first? that is converse. okay, converse के लिए what is the symbol, Q implies P. okay, this arrow indicate what, implies. implies का मतलब if then. so symbol and then you will write the statement. तो we'll start with if. Q क्या है, current increase ना. so now if, so मैं क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, जो symbolic form में है उसको statement में convert कर रहा हूँ. so what is Q here, current decreases. इसका मतलब if then ना. so first if, पहले Q बोला है ना, Q तो Q आएगा, current decreases, then P है, P is what, voltage. so voltage increases, that's it. तो ये सिंबल याद रखो, yes or no. so what is the first,
The given question will be in this form, array question. Converse will be QP, inverse will be negation of P implies negation of Q, and contrapositive will be negation of Q implies negation of P. सिंबल याद रखो तो स्टेटमेंट बनाने के लिए ईजी हो जाएगा. सो गॉट द फर्स्ट वन. कन्वर्स कैसा आ गया? यस और नो? नाउ विल सी द सेकेंड वन. what is the second one? That is inverse. Inverse के लिए it is negation of P implies negation of Q. So this symbol stand for what? If then na. So we'll start if. इसका मतलब क्या होता है? नॉट है ना, नेगेशन. पी क्या है चेक करो. वोल्टेज इंक्रीजेस. सो वोल्टेज इंक्रीजेस मतलब उसका नेगेशन क्या आएगा? वोल्टेज डज नॉट इंक्रीज. ग्रामेटिकल वर्ड भी आना चाहिए, ऐसा नहीं आना चाहिए. देखो ऐसा वर्ड यूज़ मत करो. वोल्टेज नॉट इंक्रीज, देन करंट नॉट डिक्रीजेस. ओके, ऐसा नहीं आना चाहिए. प्रॉपर ग्रामेटिकल वर्ड ओके स्टेटमेंट आना चाहिए. सो हियर इन प्लेस ऑफ नॉट डज नॉट यूज़ करो. सेंटेंस भी क्लीन एंड क्लियर और सेंस होना चाहिए. सेंटेंस में अच्छा लगना चाहिए सुनने के लिए भी. ये सर. सो नेगेशन मीन्स नॉट. पी, ये पी इज़ वॉट वोल्टेज इंक्रीजेस. तो वोल्टेज नॉट इंक्रीज मत लिखो. विल राइट इफ वोल्टेज डज नॉट इंक्रीजेस देन करंट. नॉट करके मत यूज करो. डज नॉट, वो खुद को फील आना चाहिए. नॉट लिखो क्या डज नॉट लिखो, वो खुद को लगना चाहिए हाँ सेंटेंस मैंने प्रॉपर लिखा है करके. ये सुनो. सो डज नॉट डिक्रीजेस. ओके, सो दिस वॉट फॉर इनवर्स. सेकेंड वन ऑल्सो हुआ. 3 मार्क का समय. 1 मार्क यू विल गेट फॉर कन्वर्स, 1 मार्क यू विल गेट फॉर इनवर्स, एंड 1 मार्क फॉर लास्ट वन दैट इज कॉन्ट्रापॉजिटिव. तो यहाँ पर करता हूँ मैं. ओके, देन दो contrapositive. The symbol is what? Check here. Negation of Q implies negation of P. So write down the statement. First if will come. Negation of Q na. Negation of Q. Negation means not. Q is what? Current decreases. तो current not decrease नहीं आएगा. कैसा आएगा? If current does not decrease then you can use the word increases or decrease. या increase. okay, it is on you. increase करके भी लिख सकते हैं. if current does not decrease then voltage does not yes or no इंक्रीज भी लिख सकते हो और इंक्रीजेस. इट इज़ ऑन यू. सो गॉट द पॉइंट. हाउ टू फ्रेम द सेंटेंस फॉर कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. ओके, सो वंस अगेन विल सी द गिवन क्वेश्चन विल बी इन दिस फॉर्म. सो कन्वर्स विल बी QP, inverse will be negation of P implies negation of Q, contrapositive will be negation of Q implies negation of Q implies negation of P. So when you will consider let, assumption करते समय कनेक्शंस नहीं आना चाहिए. विदाउट कनेक्शन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट फॉर P एंड Q. मतलब P किसको लिया और Q किसको लिया. देन सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, देन कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव. चलो यहाँ पर दिस इज P एंड दिस इज Q. आई गेस सेकेंड वाला सम यू कैन ट्राई बाय योर सेल्फ. आ जाएगा करने के लिए. ट्राई इट एंड सी. थर्ड वाला सम, when you will see the third sum, a family becomes literate if. so we know that if के बाद वाला जो पार्ट होता है हमेशा it is P. so women in it is literates. so P here will take the woman in a family. सिर्फ इतना लिखा तो थोड़ा ऑड लग रहा है ना. so we'll use women किधर है? they are in the family ना. so in a family is literate and Q को will take a family becomes
literate. Yes or no? I guess rest रिमेनिंग आपको आ जाएगा. तो फ्रेम, कन्वर्स, इन्वर्स एंड ओके कॉन्ट्रा पॉजिटिव. सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन कन्वर्स, इन्वर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव. आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया. यस और नो? इट इज़ वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एंड द वेटेज फॉर दिस सम इज 3 marks. ओके और याद रखना, इफ़ के बाद वाला हमेशा P, देन के बाद वाला हमेशा इट इज़ Q. ओके चलो बाय.